Atomy Hemohim's birth behind the scenes. Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atomy Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Snidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio, took 8 years. In 2006, it was finally recognized as the #1 raw material that can aid in improving immune function. Atomy Hemohim was born in this way. After a long period of research, it was created with a taste that's easy for everyone to consume. At first, Hemohim had a hard time attracting many people. At that time, Atomy appeared and started selling 30 pouches for 70,000 won. And each time the profit increased, the number of pouches increased to 48, 54, and now 60. In addition, the price has been lowered to 1/10 of the original price. Thanks to that, more consumers wanted to purchase Atomy Hemohim, and now it stands tall as Atomy Hemohim. What kind of legacy will Hemohim continue to create in the future? Only for immunity. Atomy Hemohim. Many children are struggling to survive. There are 396 million children worldwide going to bed starving. There are too many children living on the street. I wish that no child would fall asleep with an empty stomach in this world. Atomy is donating $10 million to children all over the world, taking the first step together with Compassion Korea. "1,000 children. I have received 1,000 cards like this. Since last August, I have set up monthly transfer of 50 million won from my personal banking account to 1,000 children. Every month, 1,000 children are receiving 50,000 won. 50,000 won is not enough to solve everything, but a child can eat one hearty meal a day at least, and have the opportunity to receive an education and get nurtured at a compassion center. I have 2 grandchildren. They are so adorable, more adorable than raising my own sons. I have decided to open my wallet to the best of my ability and beyond to help the grandchildren-like kids from going to bed with an empty stomach. There's more giving than receiving. But nothing is worth more than to see these children get nurtured properly. Last year, Atomy has donated $10 million, 12 billion won, to Compassion Korea, and this year we have begun sponsoring 10,000 children every month. It is 50,000 won per child. 10,000 children makes it 500 million won per month. In 1 year, roughly 6 billion won will be donated. In the past 2 years, the COVID-19 pandemic and many natural disasters occurred around the world, which directly influenced us to donate $10 million, 12 billion won, last year. When these types of natural disasters strike, children are probably the most vulnerable.
I felt that emergency relief measures are needed and with a sense of urgency, so I decided to donate $10 million. Perhaps $10 million helped to put out the fire, but children need continuous sponsorship. Therefore, since January, Atomy decided to continuously sponsor 10,000 children. Children, whether they are mine or someone else's, God entrusted me with them. I believe we must take good care of them. I am doing my best, yet there are still many starving children out there. I hope many more of you can join me in sponsoring compassion. In the Bible, it says it is more blessed to give than to receive. Rather than making money when it is spent on giving to people in need, especially when it is for children, my heart is filled with abundant satisfaction. I want to share this satisfaction with many of you. Muito obrigada, Senhor. Aquí estamos en el aula de supervivencia. Mi hijo ha aprendido a usar sus motoras finas. Hasta pronto, señor Park. Lo llevaremos siempre en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Your sponsorship has been of great impact in my life and in the life of my daughter. ልጄን እንኳን መመገብ አልችልም። ያለሁበት ሁኔታ አሳሳቢ ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእናንተ ተጽናንቼ እዚህ ደርሻለሁ። ልጄንም መመገብ ችያለሁ። እየመገቡልኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ክብር ምስጋና ይግባልኝ። Isa pa pong pinagpapasalamat ko, nakakatulong din po siya sa pag-aaral po ng anak ko. Dahil din, pati na rin po sa spiritual po na আগে যেতে পারি না, গাড়ি ঘোড়া চলে নেই, যানবাহনে গাড়ি ঘোড়া চলে নেই, কোনো রাস্তায় বাড়িতে পারি নেই, ডিউটি যেতে পারি নেই। তার জন্য এইখান থেকে প্রজেক্ট থেকে চাউলটা দেওয়ার থেকে দিতে বলে আমরা চলতে পারছি। এই উপকারে এই সাহায্যে আমাদের খুব কষ্ট হয় না। En momentos de escasez donde no teníamos para el agua potable, no teníamos para el alimento, hemos recibido esa enorme bendición de parte de usted y gracias, muchísimas gracias. Dándole gracias por todas las bendiciones que nos han mandado en estos tiempos de pandemia, pidiéndole a Dios que les supla para que nos puedan mandar a los niños de la Guajira. Gracias. सपने देखने से मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, तो रियलिटी को ही एक्सेप्ट करते हैं और उसी से ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। कुछ लोग आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं। ये लोग आपको सिखाते हैं कि अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए, क्योंकि खुश रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। ओह बाय द वे, मैंने इस चीज से कभी एग्री नहीं किया है। मैं अपने जीवन में इस चीज को कभी भी नहीं मानता हूं। क्या आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। और आज का क्या? क्या आप अपने आज को बदल सकते हैं? वो भी नहीं बदल सकता। सही कह रहा हूं ना मैं? आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि हमें अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना होगा। इस वक्त फ्यूचर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है ना? हाँ, पर ये आने वाला फ्यूचर, ये कैसा फ्यूचर होना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारी तरफ आए? उसके लिए पहले हमें फ्यूचर की तरफ जाना होगा
और एक खूबसूरत फ्यूचर बनाना होगा। हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए हम उसके बारे में सोचते जरूर हैं, पर हमारे आइडियाज को हम खुद ही क्रश कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं अच्छी सी गाड़ी कैसे चला सकता हूँ, नहीं नहीं, मैं 230 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट में किस तरह से रह सकता हूँ। इस तरह से हम अपने आइडियाज को खुद ही खत्म कर देते हैं। पर एक सक्सेसफुल इंसान किस तरह का होता है? वो कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ, हाँ, मैं महीने के 30 लाख, 50 लाख या 70 लाख रुपए कमा सकता हूँ। जो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से विश्वास करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आइडिया बहुत छोटा सा है, पर जो इंसान उसको बड़ा करता रहता है, ये एकेडमिक एबिलिटी या दूसरी किसी एबिलिटी के फर्क के बारे में नहीं है। सोचने की शक्ति, फर्क होता है लोगों की सोच में। आपको अपने थिंकिंग मसल्स को बनाने की जरूरत है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज छोटे छोटे हिस्से में आपके दिमाग में आती है। आपको अपने थिंकिंग मसल्स को बनाने की जरूरत है ताकि आप अपने आइडियाज को मजबूत कर सके। बात यहाँ क्वांटिटी की नहीं है, यहाँ बात है डेस्परेशन की, कॉन्फिडेंस की और अपने विजन को साफ साफ देखने की। आप सब लोग जब तक अपने दिमाग में ये साफ साफ देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से सक्सेसफुल होंगे, जब आप अपने दिमाग में इस चीज को साफ साफ देख सकेंगे, तब आपकी बॉडी बदल जाएगी, आपका चेहरा बदल जाएगा और आप बदल जाएंगे एक सक्सेसफुल इंसान में। मतलब हम जो हमारे दिमाग में सोचते हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी भी बदलने लगती है। दिमाग की सोच से बॉडी बदलती है, तो चाहे ये हुआ ना हो, पर हमारी बॉडी ठीक उसी तरह बदल जाती है जैसे कि ये सच में हुआ हो। ये होती है पावर ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह के इंसान के रूप में जीना चाहते हैं उस बारे में लिखिए, इसे अपने लाइफ सिनेरियो पेपर पर लिखिए और इसकी एक मूवी बनाइए। जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखेंगे तब आप सोचिए कि क्या मैं सच में एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जो महीने के 50 लाख रुपए कमा सकता है। उम्मीद तो करता हूं, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और इस वजह से ये सब लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लोग हैं ऐसे जो सारी रात जागते रहते हैं, पर वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाते हैं। वो सारी रात सोचते रहते हैं, पर अपनी लाइफ सिनेरियो पर लिख नहीं पाते। पर आप सब लोगों को अपना पेन उठाना है, हिम्मत दिखानी है और इस चीज को लिखना है। अगर आपको पसंद ना आए तो इस सोच को डेस्परेटली पकड़ कर रखिए ताकि आप अपनी सोच बदल सके। सिर्फ क्योंकि आप इस बारे में सोच नहीं सकते या ये लिखना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, ये जरूरी नहीं है कि आप इस सवाल से ही पीछा छुड़ा ले। चाहे ये ना हो सके, चाहे इसके होने के चांस सिर्फ 1% हो, चाहे इसके होने के चांसेस 10% से भी कम हो, आप इसे पकड़ कर रखेंगे और इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी पे सक्सेस नहीं मिलती, चाहे इसकी पॉसिबिलिटी कम हो, पर इस तक पहुंचना ही एक सक्सेस होगा। इसीलिए ये आपके दिमाग में आया है, तो इसे लिख लीजिए और अपने आप को इस तरह के प्रॉमिसेस करते रहिए। किसी प्रॉमिस को पूरा करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आसपास के लोगों को प्रेजेंटेशन दें, अपने परिवार को आप प्रेजेंटेशन दें। हाँ, इस बात के चांसेस बहुत हैं कि लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हैं। हाँ, पर जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना है कि वो क्रेजी हैं, उन्होंने कभी पैशनेटली अपनी जिंदगी ही नहीं जी। पैशनेट होने के लिए क्रेजी होना पड़ता है। जो लोग पैशन के साथ जीते हैं, वो जरूर सुनते हैं कि वो क्रेजी हैं, कि वो पागल हैं। पर लोग इस बात को सुनने से डरते हैं कि वो लोग असल में क्रेजी हैं। आप सबके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप सुन सके कि आप लोग क्रेजी हैं। तो हिम्मत दिखाइए और अपने परिवार को प्रेजेंटेशन दिखाइए, अपने आसपास के लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तब आपका नजरिया जो है, आपका नजरिया पूरी तरह बदलने लगेगा। हर बार जब आप बात कर रहे हैं तब आपका विजन मजबूत होता जा रहा है। इस बारे में बात करने से आपको डर लगता है। देखिए, करेज होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आपको कभी डर ही ना लगे। अपने डर का सामना करना ही करेज होता है। उस डर से बाहर आने के लिए आपको ये करेज चाहिए और ये डिक्लेयर करने के लिए कि आप सक्सेसफुल होंगे, करेज तो चाहिए।
इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब पैदा हुए हैं या अमीर, या हम किस तरह से पैदा हुए हैं। हम किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, वो जो सोच है वो हमारी जिंदगी को डिटरमाइन करती है। तो इसीलिए अपने फ्यूचर को बनाना बहुत आसान भी है और बहुत सस्ता भी है। तो जैसा चाहिए वैसा अपना फ्यूचर बनाइए, पर ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा ताकि ये वो फ्यूचर हो जो आपके इंटेंशंस को जोड़े रखे। ये फ्यूचर आपकी इच्छाओं से भरा होना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं। अगर आप हार मान लेंगे तो यह आप तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर मैं अपनी मुश्किलों की वजह से हार मान जाता हूं तो मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, उन सबको मेरे साथ हार मानना पड़ेगा। इसीलिए हमको बार बार उठना है, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, वो सब मेरे साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दिल में ऐसे लोग हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, इसीलिए डर लगने के बावजूद भी हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सक्सेस हिम्मत वालों के लिए है। आइए मिलकर निडर बनते हैं और हम सब हिम्मत के साथ सक्सेसफुल बनते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित यादव आप सबका स्वागत करता हूं गुड मॉर्निंग एटमी के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम हर सेशन की शुरुआत करते हैं कंपनी मोटो से। तो क्या आप तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन, लेट्स डू इट। ये था हमारा कंपनी का मोटो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी चेयरमैन की एक बायोग्राफी। हमारे चेयरमैन ने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019 से वे कई प्रतिष्ठित पदों पे हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसलिंग के सदस्य हैं और वह प्रेसिडेंट हैं ड्रीमी हाई स्कूल के। और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। ये थी हमारी चेयरमैन की बायोग्राफी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक खास वीडियो हमारे चेयरमैन के द्वारा। मैंने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि मेरे कहने का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो लोग इंचार्ज हैं, मैंने उन्हें काम पूरी तरह सौंप दिया है। मैं उन्हें कहता हूं कि सिर्फ पैसे खर्च करो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे अगर चीजें खराब हो गई तो भी। मैंने 17 साल तक नौकरी करी है। उस वक्त मेरे को 20 स्टैम्प्स लेने होते थे अपने सुपीरियर के लिए, मतलब कुछ भी अप्रूव होने से पहले। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को इस तरह स्टैम्प करेंगे और अगर बिजनेस में कुछ गलत हो जाता है तो मैं वो लेटर ऑफ अप्रूवल अपने सुपीरियर्स को दिखाऊंगा। वाइस प्रेसिडेंट ने स्टैंप लगाया था, प्रेसिडेंट ने भी इस पर स्टैंप लगाया था ना। मैं इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये लेटर ऑफ अप्रूवल आप सुपीरियर्स को दिखा सकते हैं। एक बार जब लेटर ऑफ अप्रूवल पर स्टैंप लग जाते हैं, ये वहां खत्म होता है। फाइनल डिसीजन मेकर को डिफाइन करने के लिए तो बिजनेस की फिक्र करते हुए आप सो नहीं सकते हैं। हमारी कंपनी में एक सिस्टम है जहां पर्सन इंचार्ज अपने सुपीरियर से अप्रूवल लिए बिना पैसे खर्च कर सकता है। यहां तक कि बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए भी हमारे एम्प्लॉयज किसी भी वक्त जा सकते हैं, किसी बिजनेस ट्रिप एप्लीकेशन को सबमिट किए बिना ही।
मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे अथॉरिटीज पर्सन इंचार्ज को डेलीगेट कर दिए गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एटमी को प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं। इतने सारे रिक्वेस्ट कॉल्स आते हैं कि मैं थक जाता हूं। मैं कहता हूं कि आपको मुझसे बात नहीं करनी और उन्हें प्रोडक्ट प्लानिंग टीम की तरफ भेजता हूं। फिर मैं प्रोडक्ट प्लानिंग टीम को भी कहता हूं कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा, तुम पर्सन इंचार्ज इस बात का फैसला करोगे कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड को मीट करता है या नहीं। अगर मैं भी तुमसे एक फेवर के लिए कहूं तो भी कभी आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना। मैं यही कहता हूं। तो मैंने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं होगा। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बेसिक्स को लेकर एकदम मजबूत है। सारी अथॉरिटी पर्सन इंचार्ज को दी जाती है। ये बहुत जरूरी है कि एक कंपनी अपने आप को किस सिद्धांतों पर बनाती है, इसलिए एम्प्लॉयज को अपने फैसले लेने की आजादी दी जाती है। और मैं उनसे ये कहता हूं, बस पैसे खर्च करो। कुछ अगर गलत हो गया तो तुम जिम्मेदार नहीं होगे। मैं उनसे यही कहता हूं। फिर कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि अथॉरिटी दी जा रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी चाहिए? मैं मानता हूं कि इस तरह की सोच गलत है। मान लीजिए वो एम्प्लॉय 10 लाख रुपए कहीं पर लगाता है। ऐसा करके उसने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो क्या ये एम्प्लॉय 50 लाख रुपए अपने पास रख लेगा? कंपनी सारा प्रॉफिट ले जाती है। मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ रुपए का निवेश करती है और 5 करोड़ रुपए का घाटा उठाती है, तो इस लॉस का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑफ कोर्स कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये जायज है कि जिस इंसान को बेनिफिट मिलते हैं, जब अच्छी चीजें होती हैं, तो कुछ गड़बड़ होने पर उसी को लॉस उठाना चाहिए। इसीलिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फैसले लेने के लिए अथॉरिटी दीजिए, पर कुछ गलत होने पर कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर क्या आपको लगता है कि क्योंकि हमारी कंपनी आराम से पैसे यूज करने देती है तो एम्प्लॉयज बिना किसी लिमिट के उसे यूज करेंगे? ये सच नहीं, क्योंकि वो लोग फाइनल डिसीजन मेकर्स बन चुके हैं। उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी और उन पैसों को यूज करने से पहले 2 बार सोचेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको खूब सारी प्रेरणा मिली होगी और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि है एक खास प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी के COO मिस्टर राहुल कुकड़वार द्वारा, जिसमें वो आपको एटमी के बारे में और जानकारी देंगे और आपको एटमी से क्यों जुड़ना चाहिए उसे और डिटेल में समझाएंगे। हमने एक सक्सेसफुल किताब लिखी है, उसका नाम है RRR, और आप सब उस बुक में एक कैरेक्टर थे। लेकिन इस बुक को हमें ग्रंथ में कन्वर्ट करना है, अ बिग बुक, और भी सक्सेसफुल बुक में कन्वर्ट करना है। स्टार मास्टर 1 आया है, हमें मल्टीपल स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इंपीरियल मास्टर बनाने के लिए ये जर्नी कंसिस्टेंटली पूरी करनी पड़ेगी, राइट? नॉट सिंगल टाइम, क्योंकि आपने जितना पिछले महीने में किया था उतना ही कम इस महीने में किया है, ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंटली अचीव करना पड़ेगा, राइट? और ये बुक है मेरे हाथ में, साइकोलॉजी ऑफ मनी। सबको पता होगा, लेकिन बुक में चैप्टर्स होते हैं, राइट? बुक में चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स पैराग्राफ से बनते हैं, और पैराग्राफ सेंटेंस से, लाइन से, और सेंटेंस किससे बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं वर्ड से, और वर्ड बनते हैं कैरेक्टर से। तो यदि हमें सक्सेसफुल बुक लिखनी है तो हमें कैरेक्टर सीखने पड़ेंगे। कौन से कैरेक्टर? A to Z ऑफ एटमी। और इसमें मैंने
अमेजॉन का सिंबल डाला है, किसी ने देखा है? क्यों डाला है अमेजॉन का सिंबल? नहीं, हमारा कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नहीं है, हमारा कंपटीशन है अमेजॉन से। हमारा कंपटीशन है क्योंकि अमेजॉन एकलौती कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन करती है, $1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है $8.4 बिलियन। हमें 8.4 बेंचमार्क नहीं बनाना है, हमें बेंचमार्क बनाना है $1 ट्रिलियन। इसलिए A to Z जानेंगे एटॉमिक के बारे में, A to Z। ओके, फर्स्ट, A is for absolute quality at, सब जन जानते राइट? A is for absolute quality and, किसी को प्रोडक्ट महंगा लगता है? किसी को अभी भी डाउट है प्रोडक्ट के महंगा है? किसी को नहीं लगता है, मुझे पता है, क्योंकि आप अचीवर्स हो, और अचीवर्स अलग तरीके से थिंक करता है, नॉर्मल पब्लिक के तरह थिंक नहीं करता है। अचीवर थिंक डिफरेंटली, इसीलिए उसको अचीवर बोला जाता है, बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली, दे टेक एक्स्ट्रा एफर्ट। सो A is for absolute quality at absolute price, और अटेंड सेमिनार्स। फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी फुल पैक था, सेकंड ईयर एनिवर्सरी में 400 सीट खाली थे, और थर्ड ईयर एनिवर्सरी में 1100 सीट खाली थे। अचीवर्स, नंबर ऑफ अचीवर्स इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, बट अटेंडेंस डिक्रीज। ये माहौल का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इज माहौल का बिजनेस है। यदि माहौल के बिजनेस में आप इनको सेमिनार में लेके नहीं आओगे, सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, तो ये माहौल चलेगा नहीं। सर ने बोला है प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते सही है, हमारा प्लान लाजवाब है, हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन ये माहौल का भी बिजनेस है। विदाउट माहौल यहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, और माहौल दिखाने के लिए उनको सेमिनार में लाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। न्यू ज्वाइनिंग को वन डे सेमिनार में, और अचीवर्स को, जिनको आपको लगता है कि ये अचीव कुछ दिनों में करने वाले हैं, उनको सक्सेस सेमिनार में। ये कॉन्सेप्ट दूसरे किसी के पास नहीं है, नहीं है, राइट? तो हमें हमारी स्ट्रेंथ पहचाननी है, हमें हमारी स्ट्रेंथ पहचान के आगे बढ़ना है। और ये सोच के किसने किसने एटमी ज्वाइन की है, अजमल सोच के किसने किसने एटमी ज्वाइन की है? देखो, आएगा तो सही, ऐसा तो नहीं आएगा, आएगा तो सही। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि कब लाना है इसको, आपके ऊपर डिपेंड है कब लाना है। मलेशिया में इस साल में आने वाला है, 2024 में मलेशिया में आने वाला है। नए ज्वाइनिंग बढ़ाने पड़ेंगे, सेल बढ़ाना पड़ेगा, यही है। और दूसरा कुछ अलग से तो बताने वाला नहीं हूं मैं, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस हो मेरे से। ओके, नेक्स्ट, बी, एकलौती कंपनी है जिसमें उसका प्लान बैलेंस है, प्लान बैलेंस है, लेफ्ट एंड राइट में मैचिंग करनी पड़ेगी तभी जाके पैसे मिलेंगे। लेफ्ट एंड राइट में लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 2-2 सेल्स मास्टर बनाने पड़ेंगे तभी जाके आप डायमंड बन सकते हो, 2-2 डायमंड बनने पड़ेंगे तभी आप शेरॉन बन सकते हो। सो विदाउट बैलेंस आप हमारे यहां पे विदाउट बैलेंस कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारे मोटो में दो वर्ड मोटो में बी से, बीइंग एंड बैलेंस। सो बीइंग क्या है? बीइंग इज कंटिन्यूटी, यानी हमें हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलाते रहना है 100 साल तक। और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि पूरी दुनिया एटॉमिक के साथ जुड़ती है, तब भी हमारा प्लान फेल नहीं होगा।
800 करोड़ लोग यहां पे ज्वाइन होने के बाद भी हमारा प्लान फेल नहीं होगा। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इंडिया में फेल होती है सिर्फ प्लान के वजह से। या तो प्लान चेंज करते हैं या प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उनको पता ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। हमारे यहां पे हंगिल पार्क सर ने बोला है पूरी दुनिया एटमी के साथ जुड़ेगी तो भी प्लान फेल नहीं होगा, दैट इज गारंटेड। हमारा बाइनरी प्लान है, इजीएस्ट इन एमएलएम। एमएलएम में इसके ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। यदि लोग 6-6, 8-8 लेख चला सकते हैं, उनकी मैचिंग करवा सकते हैं, तो हमें तो 2 ही करना है। लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, एक लाइन को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और दूसरे को नीचे की तरफ देख रहे हैं। यानी मेरी लेफ्ट चलेगी ऊपर वाले से, राइट चलेगी नीचे वाले से। अरे भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? तो जो भी ज्वाइन होता है, हम यदि उनको पहले से एक्सपेक्टेशन क्लियर करेंगे, एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर करेंगे, इफ वी क्लियर द एक्सपेक्टेशन एंड हम साथ में करेंगे काम, तो आगे बढ़ सकते हैं। बाइनरी इज द इजीएस्ट प्लान, इसीलिए चिट फंड में यह प्लान यूज किया जाता है, क्योंकि इजीएस्ट है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है ताकि वाइंड अप करके भाग जाए। लेकिन हम एक लौती ऐसी कंपनी बनेंगे जो कि बाइनरी होते हुए ट्रुथफुल कंपनी बना के रखेंगे। जो बाइनरी का दाग लगा हुआ है उसको मिटाएंगे हम। तीसरा है ब्लू मरीन। एटॉमिक इंडिया में ओपन होते ही 1 साल में प्लास्टिक जीरो कर दिया है, 1 साल के अंदर। दूसरे बहुत सारे काम है, लेकिन तभी भी सोच के पहले प्लास्टिक कम किया है, क्योंकि एनवायरमेंट का केयर करते हैं। वी केयर अबाउट एनवायरमेंट। सी 8 कोर स्टेप्स। चेयरमैन सर ने 8 कोर स्टेप्स दिए हुए हैं हमारा बिजनेस करने के लिए। दूसरा, आपको 864 भी देखना है उसके साथ साथ। 864 इज माय वीडियो, दैट आल्सो यू हैव टू सी। दूसरा हमारा था चैनल एटमी। चैनल एटमी के ऊपर हमारे खुद के कंटेंट, हमारे खुद के लीडर्स को हीरो बना के वहां पे दिखाया जाता है। अभी के केस में आप लोगों के वीडियोस वहां पे उतने नहीं है जितने कंपनी के हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी का एक भी वीडियो वहां पे ना हो, हमारे लीडर का वीडियो वहां पे हो। सपोज मैं कल कंपनी छोड़ के चला जाता हूं, छोड़ूंगा नहीं लेकिन छोड़ के चला जाता हूं, तो वो वीडियो पड़ा रहेगा वहां पे, लेकिन मुझे पता है कि आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो आपका वीडियो वहां होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लिंक भेजोगे अपने लीडर्स को या अपने डाउनलाइंस को, तो आप आपका चैनल एटमी का लिंक भेज सकते हो, ताकि आपको फीचर किया है वहां पे। सो चैनल एटमी में आने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, कंपनी के बारे में लर्न कीजिए। सो नेक्स्ट इज कस्टमर सक्सेस। एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात नहीं करती है, कस्टमर सक्सेस के बारे में बात करती है। क्योंकि आपका यदि सक्सेसफुल हो, आप यदि सक्सेसफुल होते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। जब आपके पास इनकम आएगा, जब आप सक्सेसफुल होगे, जब आपका रैंक आएगा, यू बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू अचीव रैंक, राइट? सो आप जब सक्सेसफुल होगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन से, क्योंकि हमारे लिए हमारे लीडर बड़े प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू हिमोइम। एज कंपेयर टू हिमोइम आवर लीडर्स आर बिग। डी क्या है? ड्रीमी स्कूल। इंडिया में 2 स्कूल है, किसको पता है? ड्रीमी के 2 स्कूल है, किसको पता है? बहुत लिमिटेड लोगों को पता है। ऑलरेडी वी आर हैविंग 2 स्कूल इन इंडिया, ड्रीमी स्कूल। एक है बैंगलोर में और दूसरा है नागालैंड में। एंड कंपनी विजन ऑलरेडी डॉक्टर अब्राहम टोल्ड ड्यूरिंग द 3rd year anniversary he wanted to make 100 schools in next by 2030। और इस स्कूल के माध्यम से हम 1 लाख अंडर प्रिविलेज लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि कंपनी जब सक्सेसफुल होगी, जितने जल्दी सक्सेसफुल होगी, उतने जल्दी हम डोनेट कर पाएंगे या फिर इन्वेस्ट कर पाएंगे ड्रीमी स्कूल के अंदर।
डुप्लीकेशन। आप जूम पे आओ, आप मीटिंग करो, आप मार्केट में जाओ, आप प्रोडक्ट सेल करो, आप नए ज्वाइनिंग को ट्रेनिंग करो, आप ही न्यू ज्वाइनिंग करो, आप ही उनकी शॉपिंग करके उनके घर पे पहुंचाओ। इससे बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपको यदि बिजनेस बढ़ाना है तो आपके जैसे मल्टीपल लोग बढ़ाने पड़ेंगे। आपके जैसे यानी जो सोता है, जो घर के बाहर नहीं जाता है, वैसे नहीं बनना है। ऐसे देखोगे कि नहीं तो ऐसे बोलोगे कि वो वैसे कर रहा है तो मैं भी वैसे करूंगा। जो जरूरत के हिसाब से सही है और जो 8 कोर स्टेप्स में बताया हुआ है उस तरीके से डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन आपके अपलाइन के तरह से नहीं करना है। कंपनी ने जो बताया है उस सिस्टम से डुप्लीकेट करना है ताकि ग्रोथ जल्दी हो और सबका तरीका सेम हो। सबका तरीका भी तो सेम होना चाहिए। मेरे टीम का तरीका और उनके टीम का तरीका सेम होना चाहिए, राइट? तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आप ही मीटिंग में जब आप जाओगे मार्केट में, व्हेन यू गो इनटू मार्केट देन ओनली सेल विल हैपन, और वो एबनॉर्मल ग्राफ रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यदि आपको कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ चाहिए तो आपको टीम में डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। एटमी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब। इसके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है। एटमी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन हब विच कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द मैन्युफैक्चरर, जो कि बेस्ट है, और उसको हम हमारे नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी यूज आवर नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड जहां पे भी जो भी बेस्ट मिलता है उसको कलेक्ट करके थ्रू आवर चैनल वी सेल। एटमी डीएनए बुक, वी शुड हैव दैट मच नॉलेज अबाउट एटमी कि खून भी कटेगा तो निकलना चाहिए ना ब्लू। ओके, ई एजुकेशन सेंटर सिस्टम। वर्ल्ड में एकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास एजुकेशन सेंटर का सिस्टम है। हम दूसरे कंपनी जैसे फ्रेंचाइजी या कुछ नहीं देते। हमारे पास एजुकेशन सेंटर इटसेल्फ इज एम्पावर्ड टू गिव ट्रेनिंग, एम्पावर्ड टू कंडक्ट सेमिनार्स उनके एजुकेशन सेंटर में। और न्यू ज्वाइनिंग यदि कोई होता है और उनको यदि सिस्टम जानना है तो उनको एजुकेशन सेंटर विजिट करना चाहिए। वहां पे डेमो भी किए जाएंगे, वहां पे सिस्टम के बारे में बताया भी जाएगा। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट एटमी एट एजुकेशन सेंटर। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। टिल नाउ इन इंडिया we are not charging anything directly from you for the seminars as well as training. It is an indirect cost. यदि कुछ ले भी रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आप कैंसिल ना करो। यदि कोई भी टिकट बुक करेगा आएगा नहीं तो रूम खाली हो जाएगा, तो पैसे इसलिए लेते हैं कि आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि यू आर कमिंग। तो कभी भी कंपनी ये नहीं करेगी कि एजुकेशन के लिए पैसे लेगी, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली नहीं लेगी, और लेगी भी तो बहुत नॉमिनल चार्जेस में लेगी। जैसे कि 3964 में एजेंट ट्रेनिंग करवाई, दैट इज नॉमिनल कॉस्ट, राइट? 3964 इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट। और दिस वी आर डूइंग ओनली इन इंडिया, नो अदर ब्रांच, नो अदर कंट्री इज डूइंग, ओनली वी आर डूइंग इट। यदि हमें मास तक पहुंचना है तो नीचे वाले को उठाना पड़ेगा, और नीचे वाले को उठाने के लिए उनके पास एजुकेशन जाना इज मोर इंपॉर्टेंट। उसीलिए हमने ग्रास रूट में जाकर ट्रेनिंग करने का सोचा था, और आने वाले दिनों में और भी प्लान है। एफ, फॉलो द फेथ। हमारे मोटो की लाइन है फॉलो द फेथ। दूसरा है फॉलो अप। यदि आप ज्वाइनिंग करोगे, लोगों की ज्वाइनिंग करोगे, लोगों को सिस्टम के साथ लेके आओगे, उनकी आईडी बनाओगे, लेकिन यदि आप फॉलो अप नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो माय रिक्वेस्ट इज, इफ यू आर नॉट रेडी विथ फॉलो अप, देन डोंट गो इनटू मार्केट एंड टेल अबाउट एटमी। क्योंकि जितना टाइम आप ज्वाइनिंग में देते हो, जितना टाइम आप लोगों को बताने के लिए देते हो, उससे ज्यादा टाइम आपको फॉलो अप में देना पड़ेगा।
यदि आपको शर्म आती है लोगों को फॉलो अप करने के लिए, तो शर्म को मिटाओ, फॉलो अप, फोन करो, एक्सट्रोवर्ट बनो। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने में ही फॉलो अप हो सकता है, नहीं तो फॉलो अप नहीं होगा। GS ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। सो ऑलरेडी हमारा जो स्पिरुलिना है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ GS। दूसरा गोल, और गोल के लिए हमारे पास क्या है? गोल सेटिंग करने के लिए हमारे पास क्या है? लाइफ सिनेरियो। सो मैं हमेशा सेमिनार में बोलता हूं या ट्रेनिंग में बोलता हूं, एटमी ज्वाइनिंग इज नॉट 0 रुपीज। एटमी की ज्वाइनिंग जो बोलते हैं ना फ्री है, एटमी की ज्वाइनिंग फ्री में नहीं है। एटमी की ज्वाइनिंग है 150 रुपया। तो जो भी ज्वाइन करेगा बंदा, जो भी बंदा ज्वाइन करेगा, उसका पहला काम होना चाहिए उसने लाइफ सिनेरियो खरीदना चाहिए। क्योंकि जब गोल क्लियर होगा तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग एटमी एक अपना प्लेटफॉर्म है जो कि कब आता है? मंथ के लास्ट के मंडे में गुड मॉर्निंग एटमी आता है, जिसके अंदर हम एटमी के बारे में कुछ अपडेट्स देते हैं। ग्रोइंग टुगेदर इन एटमी, वी ग्रो टुगेदर। क्योंकि पहले भी बताया मैंने, जब तक नीचे वाले ऊपर नहीं जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक लेफ्ट का टीम और राइट का टीम एक साथ काम नहीं करेगा तब तक आपका हायर अचीवमेंट नहीं आ सकता है। यदि आप लेफ्ट वाले के साथ प्लानिंग अलग करोगे, राइट वाले के साथ प्लानिंग अलग करोगे और बोलोगे कि आप तो मेरे पावर के साइड में हो, मैं तो विकर पे काम कर रहा हूं, यह नहीं चलेगा। क्योंकि कब विकर पावर बन जाएगा और कब पावर विकर बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी डिफरेंशिएट मत करो। लेकिन वो मत कोई सुनता नहीं है और करते हैं। हाँ करो, उनको सुनने में आता है कि करो, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरीके से ये करता है ना। लेकिन बोल रहा हूं मत करो, मत यानी डिफरेंशिएट नहीं करना है। और हमारा एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि 3 जनरेशन की गारंटी देती है। 3 जनरेशन। आवर कंपनी टॉक्स अबाउट 3 जनरेशन। हम बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तब से बच्चे को बोलते रहते पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा, पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा, पढ़ ले बेटा बड़ा बनेगा। यदि खुद हम 4 साल 5 साल इसको इंप्लीमेंट करते हैं, खुद काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, खुद को बोलोगे काम कर ले बेटा बड़ा बनेगा, तो बच जाओगे। और सिर्फ आपके जनरेशन के लिए नहीं रहेगा, नेक्स्ट 2 जनरेशन के लिए रहेगा। राइट? H हमारे मोटो में लिखा है सर्व इन ह्यूमिलिटी। यानी हम रॉयल मास्टर बने, क्राउन मास्टर बने, इंपीरियल मास्टर बने, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, हम हवा में चले लेकिन पैर जमीन पे होने चाहिए। हमारे पैर हमेशा जमीन पे होने चाहिए। आप लीडर पड़े होंगे लेकिन लीडर आप आपके टीम के वजह से हो। यू आर अ लीडर बिकॉज ऑफ योर टीम। सो ट्रीट योर टीम विथ ह्यूमिलिटी। हानगिल पार्क। मोस्ट रिस्पेक्टेड CEO इन डायरेक्ट सेलिंग, और बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ट्रूथफुल रह के काम करने वाले बहुत कम CEO होंगे। उसमें से एक है, कभी भी कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। ये कंपनी को गाइड किया है उन्होंने। हेलीकॉप्टर एंट्री किसको पता है? हेलीकॉप्टर एंट्री, ओके, हेलीकॉप्टर एंट्री मीन्स सपोज 1 लीडर इज नॉट वर्किंग और उनकी आईडी खाली पड़ी है और वो काम नहीं कर रहे हैं और जाने वाले हैं, उसके पहले ये आईडी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, बड़े लीडर को। उसको हेलीकॉप्टर एंट्री बोलते हैं। और ये इनके विजन की वजह से, इनके डायरेक्शन की वजह से, इनके सपनों के वजह से।
खुद के सपनों की वजह से। ही वॉन्टेड टू मेक बाइनरी प्लान सक्सेसफुल, प्रोडक्ट बेस्ड बाइनरी प्लान सक्सेसफुल, विच विल लास्ट फॉर 100 years विथ ट्रूथफुलनेस। हिमोइम मेरा ये प्लस पॉइंट भी है, 21 पेटेंट्स है इसके ऊपर। नो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज हैविंग पेटेंटेड प्रोडक्ट लाइक एटमी। सिंगल प्रोडक्ट विथ 21 पेटेंट्स, सिंगल प्रोडक्ट विथ 21 पेटेंट्स। लेकिन इसका तो सेल आएगा ही आएगा, इसका तो सेल आएगा। आपको दूसरे कैटेगरी को प्रमोट करना है, दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। यू हैव टू प्रमोट अदर कैटेगरी, अदर प्रोडक्ट्स। दिस विल सेल ऑटोमेटिकली। ये हमारा काबिल बच्चा है, ये हमारा टॉपर है, टॉपर। ये तो बिकेगा ही। अरे इसको बिकाने के लिए क्या बोल रहे हो, मैंने 22 बेचा, मैंने 8 बेचा, मैंने 4 का सेट बेचा, ये तो बिकेगा ही। जो नालायक बेटे हैं उसको हाथ पकड़ के लेके जाओ ना। डिटर्जेंट सिंगल ब्रांड सर्फ एक्सेल इज $1 billion, दैट इज 8,400 करोड़ का सिंगल ब्रांड है सर्फ एक्सेल। वैसे निरमा है, घड़ी है और कुछ कुछ है। तो 8,000 करोड़ का सिंगल ब्रांड एक डिटर्जेंट बेच सकता है, तो उस डिटर्जेंट से बेटर डिटर्जेंट मेरा है, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? हेल्दी इंडिया, ब्यूटीफुल इंडियंस। इंडिया को हेल्दी बनाना है और इंडियंस को ब्यूटीफुल बनाना है। इंडियंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हिमोइम खा के तो ब्यूटीफुल नहीं बनेंगे, उनको तो ब्यूटी प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे, बाकी के प्रोडक्ट भी देने पड़ेंगे। सो माय रिक्वेस्ट इज, हमें इस टैगलाइन के साथ, इस टैगलाइन जो हमारे एमडी सर ने दी है, इस टैगलाइन को लेके हमें इसको घर घर तक पहुंचाना है। 100 year कमिटमेंट। सो 100 year का कमिटमेंट है एटमी की तरफ से। आए सबका सपना इंपीरियल मास्टर, सबका लक्ष्य कॉमन है। जो आज ज्वाइन होगा, जो पिछले साल ज्वाइन हुआ, 2 साल पहले ज्वाइन हुआ, कोरिया का बंदा है, यूके का बंदा है, यूएसए का बंदा है, सबका सपना है इंपीरियल मास्टर। इस सपने को साकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए लाना पड़ेगा। एटमी का डीएनए लाके खून को ब्लू कर देंगे। जे की टू सक्सेस इज ज्वाइनिंग। ओपनिंग के पहले डेली हम 15,000 मेंबर्स वी यूज्ड टू ज्वाइन डेली, और ये आप लोगों ने ही किया है, कंपनी के लोगों ने नहीं किया है। तब तो ऑफिस भी नहीं था, तब तो एम्प्लॉयज भी नहीं थे, तब प्रोडक्ट भी नहीं था। देन ऑल्सो 15,000 मेंबर्स पर डे। वी यूज्ड टू हैव 20 मेंबर्स फॉर ओनली वेरिफिकेशन। यदि कोई माउंट एवरेस्ट पे जब तक कोई गया नहीं, तब तक वो डिफिकल्ट था। 4 मिनट में 1 माइल भागना, बोला जाता था, डॉक्टर बोलते थे कि यदि आप 4 मिनट में 1 माइल से ज्यादा भागोगे तो आपका हार्ट इतना जोर से बीट करेगा कि ये बस्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे। 70 साल तक वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे थे। लोग के बिलीफ में बैठा हुआ था कि मैं इससे ज्यादा फास्ट भागूंगा, मर जाऊंगे। और कंटिन्यूअसली अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है उसका, कंटिन्यूअसली एवरीबडी इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड। तो एक बिलीफ है, और यदि एक बार किसी ने उसको अचीव कर दिया तो दूसरा भी करेगा। तो आपने खुद अचीव किया है पहले, हमने नहीं किया है। और या दूसरे किसी कंपनी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, आपका एग्जांपल दे रहा हूं, जिन्होंने 15,000 ज्वाइनिंग पर डे दी थी। तो क्या हम अगले साल में यह टारगेट फिर से ला सकते हैं? 15,000 ज्वाइनिंग पर डे टुगेदर। ऐसे नहीं बोल रहे कि अकेले को करना है, टुगेदर। यदि हम इस नंबर को अचीव करते हैं जो आपने खुद किया था, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। जैसे कि चाइना में बोला जाता है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ही इंपीरियल मास्टर आ जाएगा, जिसका ओपनिंग हमारे साथ हुआ है। 3 महीने पहले हुआ है, एटमी इंडिया के ओपनिंग के 3 महीने पहले वहां पे हुआ है चाइना में।
और अगले साल में इंपीरियल मास्टर आने वाला है और क्राउन मास्टर ऑलरेडी है। तो चाइना, हाँ आज के डेट में यदि चाइना में हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ज्वाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज 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 ज्वाइनिंग पे फोकस कीजिए। यदि ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, जैसे बोला गया है कि 10% का रेशियो है, 100 ज्वाइन होंगे तो 10 काम करेंगे, उसके लिए आपको ज्वाइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन रियल में काम करना चाहता है। नो ज्वाइनिंग फीस। लेकिन मैंने अभी खुद बोला है कि 150 रुपया ज्वाइनिंग फीस बोलना है आपको, सो दैट 150 रुपए में लाइफ सिनेरियो परचेस करोगे और गोल सेटिंग करोगे। बट आवर प्लान एज पर कंपनी पॉलिसी देयर इज नो ज्वाइनिंग फीस इन्वॉल्व। के दूसरा, केरी कोलमार के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। केरी रिसर्च करता है कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, उसको मैन्युफैक्चर करता है कोलमार, जो कि कोलमार सिर्फ एटमी के लिए नहीं बनाता है। कुछ प्रोडक्ट जो पेटेंटेड होते हैं वो सिर्फ एटमी के लिए बनते हैं और एटमी के पास मार्केटिंग राइट्स है। मैन्युफैक्चरिंग करता है कोलमार, रिसर्च करता है केरी, और एटमी के पास मार्केटिंग राइट्स है, मार्केटिंग। दूसरा, की टू सक्सेस इज नो अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्लान बेचने जाओगे तो प्लान बेचने के टाइम पे ऐसा ही बोला जाता है कि पागल बना रहा है, 6 करोड़ कहां से आते हैं, पढ़ाई करने से भी 6 करोड़ नहीं आते हैं। तो वो सब जन प्लान के लिए ज्वाइन नहीं करते। एवरीवन विल नॉट ज्वाइन फॉर प्लान। और आप यदि आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि जब नया बंदा आएगा कौन यूजर है, कौन प्लान के लिए आया है, कौन बिजनेस के लिए आया है, कौन सिक्योरिटी के लिए आया है, उसका इमोशन क्या है कंपनी के साथ ज्वाइन करने का, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा और आप सिर्फ प्लान दिखाना चालू करोगे तो वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू फाइंड आउट whenever new person join what is his requirement, what is her requirement. Based on that you have to start telling them. L, लाइफ सिनेरियो। हमारे आरआरआर में एक राइज है, राइट? राइज मीन्स छलांग लगाना है हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, और छलांग लगाने के लिए हमें गोल पता होना चाहिए। यदि गोल पता नहीं है तो छलांग कहां लगाओगे? यदि फुटबॉल ग्राउंड में दोनों तरफ पोल ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो क्या गोल होगा? क्या इधर उधर भागता रहेगा बॉल? तो गोल तो लगाना पड़ेगा। यदि आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए कैसे भरना है, तो मैं आपके साथ अलग से बात करूंगा। आपको बकेट लिस्ट भरनी है। पहला चीज आपको बकेट लिस्ट भरनी है। फर्स्ट सेक्शन आपको भरना है आपका लाइफ विल। ये दो चीजें भरनी है सिर्फ, बकेट लिस्ट और लाइफ विल। और लाइफ विल जब भरोगे तब विविडली भरना है, विविडली। यानी घर यदि लिख रहे हो कि मुझे घर करना है तो विविडली होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट का घर, कौन से सिटी में, कौन से माले पे, कितना एरिया होना चाहिए, उसके अंदर कलर कौन सा, कब तक, कितने करोड़ रुपया इन्वेस्ट करूंगा, विविडली लिखोगे आप। और आपके लाइफ का 360 डिग्री कवर होना चाहिए। आपके लाइफ का 360 डिग्री कवर होना चाहिए। 360 डिग्री लाइफ का क्यों बोल रहा हूं? यानी आपके बारे में भी होना चाहिए उसके अंदर प्लेजर, आपका प्लेजर, आपके फैमिली के बारे में होना चाहिए, आपके पेरेंट के बारे में होना चाहिए, सोसाइटी के बारे में होना चाहिए, डोनेशन सोसाइटी के बारे में होना चाहिए, ट्रैवल के बारे में होना चाहिए, किड्स के बारे में होना चाहिए। तो आपके लाइफ का 360, घर, बाहर, पेरेंट्स, सोसाइटी, सबको कवर करना है विविडली। सो लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है। जो भी नया बंदा ज्वाइन होगा, यदि आप उसका मोबाइल देखोगे, जो भी बंदा नया ज्वाइन होता है और आप उसका मोबाइल देखोगे तो उसमें 1000 एटलीस्ट कॉन्टैक्ट रहेंगे, एटलीस्ट 1000। तो आपको डेली 1000 लोग मिल सकते हैं। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। और आपको लिस्ट को कैसे बढ़ाना है
यही डायरेक्ट सेलिंग का गेम है। यदि आपका लिस्ट थम गया, इसका मतलब आप थम गए। इफ यूर लिस्ट स्टॉप, दैट मीन्स यू आर डेड। डेड स्टॉप भी बोल सकता था मैं, लेकिन डेड बोल रहा हूं। वाई आई एम सेइंग डेड नॉट स्टॉप? क्योंकि डेड वाले को फिर से थोड़ी उठा सकते हो आप। डेड को फिर से उठा नहीं सकते। स्टॉप को तो फिर से हो जाएगा, डेड को फिर से नहीं उठा सकते। एम, मोटो। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास मोटो है, मास्टर स्ट्रेटेजी। सो फॉर मास नंबर ऑफ पीपल वी हैव अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स। Atomy is having a prestigious product for mass people. But you have to believe that we are having prestigious product. If you don't believe, तो कुछ भी नहीं है। पहले आपको खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि we have a prestigious products, result oriented products, और आपको जानना पड़ेगा कि ये गेम है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, और ये गेम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हो यदि आप इस गेम को समझोगे तो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस गेम, यू विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। योर स्पीड विल बी द रॉकेट स्पीड इफ यू बिलीव इन दिस। एंड दिस इज द ओनली बिजनेस, ये अकेला बिजनेस है जो कि मल्टीप्लिकेशन से बढ़ सकता है। बाकी सब जगह एडिशन होता है। आप सेविंग में डालते हो, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, एडिशन होता है ओनली। इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। यहां पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। 1 से 2, 2 से 4, और महीने में एक आदमी जोड़ते हो। मैंने बहुत बार बोला है, वो शीट भी बना के दिखाया। इफ यू ज्वाइन 1 गुड पर्सन इन 1 month, in 25 months your team will be 5.3 crore. That is the power of multiplication. यदि आपको जानना है बहुत इसके बारे में कैसी बढ़ती है, तो वो एक्सेल का फॉर्मूला मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। वो एक्सेल का फॉर्मूला है, सिंपल एक्सेल का फॉर्मूला। यदि 1%, क्या हम महीने में 1% को डुप्लीकेट नहीं कर सकते? आराम से कर सकते, राइट? 1% in 1 month is easy, right? If we do it for 24 months or 30 months, then it will be 5.3 crore. 10 जन भी यहां से काम करेंगे तो पूरी इंडिया ज्वाइन हो जाएगी एटमी के नीचे। ओनली 10 पीपल वो फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो पूरी इंडिया एटमी के साथ जुड़ेगी, पूरी इंडिया। ओके, वी हैव कंप्लीटेड 13th राइट नाउ। नेक्स्ट 13 वी विल कवर टुमारो। उम्मीद है इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपके एटमी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसी प्रेजेंटेशन को आगे हम एज पार्ट 2 आने वाले एपिसोड में आप सबको दिखाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। चलिए बढ़ते हैं कुछ अपडेट्स की ओर। तो हमारा सबसे पहले अपडेट है, जनवरी महीने में हमने लगभग 7 सिटीज़ में वनडे सेमिनार कंडक्ट किए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। वनडे सेमिनार के अलावा 21 जनवरी को हमने सक्सेस एकेडमी किया कोलकाता में, जिसमें एक्ट्स प्रोग्राम के तहत रॉयल मास्टर मी सुक किम ने कोरिया से पार्टिसिपेट किया और सबको ग्रीट किया। तो हम रॉयल मास्टर मी सुक किम को थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने सक्सेस एकेडमी कोलकाता, इसके अलावा गुवाहाटी वनडे सेमिनार में पार्टिसिपेट किया और स्पीच दिया और सबको मोटिवेट किया। चलिए, तो जनवरी महीने में जो भी हमारे वनडे सेमिनार हुए, इसके अलावा जो सक्सेस एकेडमी हुआ कोलकाता में, उसकी हम एक छोटी सी झलक देख लेते हैं।
इसी प्रकार से हम फरवरी महीने में भी 1 डे सेमिनार्स और सक्सेस एकेडमी कंडक्ट करेंगे, जिसकी जानकारी, लोकेशन आप सबको जल्द शेयर कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि है Go100 प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इस प्रोजेक्ट के तहत एटमी मैनेजमेंट से हमने अलग अलग एजुकेशन सेंटर जनवरी महीने में विजिट किए, मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन की और मीटिंग्स की। चलिए देख लेते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ऑटो टर्मिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी नेक्स्ट ऑटो टर्मिनेशन डेट है 31 जनवरी यानी कि 31 जैन। सो जिन जिन मेंबर्स ने पिछले 1 साल में अभी तक कोई परचेज नहीं किया है, तो कृपया करके 31 जनवरी से पहले एटमी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेज करें, ताकि आपकी आईडी कंपनी से जुड़ी रहे। ये था हमारा गुड मॉर्निंग एटमी का आज का एपिसोड। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम हर सेशन का अंत करते हैं अपने कंपनी मोटो से। तो क्या आप तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन, लेट्स डू इट। ये था हमारा गुड मॉर्निंग एटमी का आज का एपिसोड। आप सबसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।